Shalin sir, please begin. Okay, sure. So first of all, I would like to invite Mr. Brijesh Shah, who is the cloud engineer, and he has the experience 5 years in the same company. He has developed and he has worked on the cloud services by handling the cloud, developing the cloud. Today, as an expert, I would request to Mr. Vijay Shah to deliver his knowledge to the students that how the cloud is working, what are the opportunities for the students in the field of cloud computing. Okay, Vijay sir, over to you. Thank you, sir. Uh, Hi, myself Brijesh Shah. I am working as a cloud engineer in Aside Solutions Private Limited since 5 years. So, you all heard about cloud very oftenly that uh, cloud is booming in the market. Cloud services are very useful and very reliable. So we don't know anything about cloud, like what is cloud, what they are talking, what are the service providers of cloud and everything. So now today I have made some presentation about cloud and cloud computing. We'll see, and I'll show you practical too, so that like I know you already learn about cloud in theory, but how it is been implementing in industry in real life, I'll show you that. Okay. So start. Cloud. First of all, what is cloud? Why cloud is came to picture? Why it has been implemented? So I'll start with simple thing. Cloud is the services we use over the internet. Cloud is the services. Services can be server, database, storage, networking, or anything, etc. There are so many services available over the internet. It's called cloud. And what is cloud computing? Like you are using by using that cloud, you are making your company's infrastructure, or if you are using cloud services for your document storage, data storage, or your networking or your database, it's called cloud computing. uh, Second thing is cloud based delivery. It's a like what type of services can be available on cloud, we'll see about it. Then cloud networking, how cloud how we can create our own cloud, own network over on the cloud. And then cloud client platforms, I'll talk about types of cloud providers currently in the market. Who all are the cloud providers? We'll talk about it. So cloud computing, just a second. Cloud computing again. So on, like it's a picture of services can be available on the cloud. They are, as you can see, infrastructure. What is infrastructure? Infrastructure means the data center or the things we are using to run our company or to run our product. That is called infrastructure. So on the cloud, infrastructure means you can configure your own infrastructure easily over the cloud, and you can use it
over the internet. How many servers do you want? How much of storage you need? How fast your internet you required? You all can like you can configure that thing in the cloud. Is called infrastructure as a service. Then platform. What is platform? Like third party providers. We'll talk about it. But third party providers provide you application development tools on which developers or researchers can create their code, deploy their code. It's called platform. So it's a platform as a service. And third one is application. Application means a software as a service. Software means like I have created my own software and I'm providing services to client to use that software like as a product. It's called a SaaS, software as a service. We'll see brief about it. IS, infrastructure as a service. What is it? As an example, if you want to create a infrastructure for your company or for your own good, it will there are so many things come in picture. Like if we are going in a traditional way, that you have to create space for your data center creation, it will cost electricity, it will add cost in hardware resources, like all the things you need to manage individually in your premises. So to solve that type of issues, cloud come in picture. Cloud provide you like you can create your infrastructure how much, like how big or how small you want. If you have so some little requirements, like if you don't have that much of client, that you can create small infrastructure, small servers, storage, database, all things. So these are the service providers: Amazon Web Services, Microsoft Azure. These are the type of service provider, cloud service providers: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle, IBM. There are so many others, but these are like uh, high, highly usable by clients and companies. And what it includes: server and storage, networking or firewall. Like these are the services they are providing in infrastructure creation. Then platform as a service, as I already told, it's that providers will give you the platform. Like you can anyone can create their own code or deploy their own code and check, or they use their services. So it's called PaaS. The examples of PaaS is Google App Engine, Docker, Kubernetes. They are the orchestration tools. Like you can deploy your code, you can manage your servers code, you can scale it. And SaaS, software as a service. What is software as a service? Like uh, we are using something we are using some software, or we are using some product. Like we are using Facebook, or we are using Google Drive. So many person are using Google Drive. What it is, it provides you the leverage that you can upload your data on their Google Drive or their storage. It's called SaaS. It's also called a DaaS, a data as a service, which Google Drive is providing.
but it's also called as software as a service. Uh, we can also conclude Gmail as a SaaS. Also, our company is also a SaaS based company. We are providing product as a service. There are mm, two all other type is software development as a service and data as a service. It's a separate thing, but it's a same thing. Software development as a service, like companies which are providing development duties, they will write code for you. You have to just provide your data, for provide your information, what your requirements, and they will do it. So it's called software development as a service. Then data as a service. What is data as a service? Like, if we, there are two aspects, like individual and on as a company. As an individual, what type of data I need, what type of data I have, like my photos or my some sensitive documents, and so I I need to keep it safe. I need to keep it uh, available, redundant, so that if my device or if my hard drive hard drive got crashed or anything happens, my data won't get lost. So what this cloud service is providing me, a document storage, so I can directly upload my data to cloud and save it. I can manage it anyhow, like I want to download, I want to re-upload, or I want to keep it in a deep glacier. We'll talk about it. Keep it in a deep glacier, like after 3 4 years or after 10 years, the data will be available to me. So that's a data as a service. And there are providers are Amazon S3, Azure Storage Data Services, and Google Drive, as we see. Okay, so next, cloud networking. What is cloud networking? Like, uh, how you are going to use your cloud. You have created a server, a platform over the on the cloud, and how you are going to give your client that services over the internet. It, so it's decided by networking. Like, if you are using public cloud, private cloud. What is public cloud? So public cloud is like anyone can access your service, anyone can access your servers over the cloud. If you are providing that type of service, like platform as a service, then you will give your server access to user, to client, so they can do anything over on your server. So it's called public cloud. In private cloud, companies will keep their data only with them. Like, if someone wants to access their data, they need to authenticate themselves, and then they can access their data. So it can be achieved by private cloud. Hybrid cloud companies are, they use public and private cloud both simultaneously. Like, if some services are required to be public, they use public cloud, and if some services are required to be private, to keep private, to keep secure, so they use private cloud. And multi-cloud is like some companies use two or three or multiple cloud provider service, like they are using AWS, they are using Azure, both in the same time, so it's called multi-cloud. There is one PPT. Oh, I got missed. So there are, as we spoken, there are so many cloud service providers available in the market, but
main are AWS cloud. Main, I can say, like widely used. AWS is being used by so many companies and so many regions. So it's a big cloud eh, provider. AWS cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM also providing the same. Today, I'll give some basics of, like, it's a theory part that uh, these things can be happening on the cloud, how uh, this can be achieved over the cloud, but why we are using it, like in the practical thing, how industry is using cloud. I'll show you that thing, that how a company is using cloud to create their infrastructure, create their product over the cloud, how they are uh, giving their services over the cloud. I'll give some brief knowledge about it. S- So as an example, I have chosen AWS cloud services. We'll see something about AWS cloud, how what type of services AWS is providing currently, how their services we are using it, how we will create a cloud in AWS. We'll see about it. So there are few topics, like they are main to create a cloud, create an infrastructure. What it is. So let me go with the presentation. Hmm. You can see AWS screen. It's a AWS console, AWS management console, like uh, the cloud service provider will check how many services they are providing. These are the services list, what we can do over the cloud. EC2, S3, VPC, CloudFront, Firewall, IAM, Route 53, Elasticache, Glacier, Gateway. We'll see one by one how well. So from starting, what we need to use when we are creating a cloud or creating an infrastructure, what is first requirement is you create separate user, like who can access the your admin console, who can you can change some settings in your console or on your cloud. So for that, there is one service, IAM. It's identity and access management. Don't go over the words. You need to create your user. Like if you have multiple user who will access admin console, so you can create one admin user and five sub users who only see some services, who only can change some of the settings. You can manage that all here, from here. Will I have already created my user. We'll see, like let's create one thing. Let's What we are trying to achieve here is we are going to create a cloud, our infrastructure. Like I will create one server, I'll give attach it with networking. I'll create one bucket in S3. How we are using, how will we use, we'll talk it. We'll
let's create one. First of all, let me delete this. We are assigning it to admin group, that it can access or it can edit anything, any configuration. Tags is so you can see that there is one user created. Let's check. You can see we are right now logged in as test user, so I can manage. Hello, Vijay sir. Yes, Sir, sorry to interrupt, but only presentation slide is visible to us. sorry. The presentation screen is visible. Okay. Oh, I'm sorry. You are performing something that screen is not visible to us. Wait, let me share it with you. Is it visible now? Yeah, now it is visible. So I have to restart. Let's restart. What I have done is, it's a management console of AWS service cloud provider. We have created one user, one admin user, and one simple user, to which I have given him access as an admin. We can manage that user, like how the user will work on the admin console. It's only for the admin console how other user will change setting or can create a server, or how they manage the cloud. We can manage that from this identity and management services. Let's change it. Yes.
What if we so we can see that he can see all the services, he can create, he can use all the services. But what if we want to keep it low? What if we need to like the user can't create an EC2 instance? We need to create that policy. How? So there are so many things can be done here. Like currently we have given his administrator access. That's why all the services are visible to him. But let's remove it. If we want to restrict something to the other user, to the sub user, like they can't, they should they should not be able to access all the services. They just can see AWS console and that's it. Okay, right now this user is not added in any group, so there are, it can't be access any services any which admin can. So let's see. As you can see, there is it will give error to him that you are not authorized to access these services. So it's called IAM, what AWS. Okay, so now we'll move to the main thing. Like the backbone of the cloud is server computing. What mainly requires in your companies, in your infrastructure backbone. So AWS is providing EC2 service. EC2 means Elastic Compute Cloud. Why Elastic? As there is some features I didn't discuss and of the cloud. Why cloud? We can like in old ways there are data centers जो ऑन प्रीमाइसिस बनाए हुए थे. ऑन प्रीमाइसिस बनते थे कि रैक बनाया हुआ है, डेटा सेंटर क्रिएट किए हुए है, बट it was cost, it was so costly, like you have to manage that server. If anything goes wrong or anything goes down, you have to like solve everything, you have to keep manage that. And also it was costly for it was costly for the company, for the individual. So what cloud is provide, cloud क्यों आया?
तो क्योंकि क्लाउड पे बहुत सारी चीजें इजीली हो सकती है, लाइक इफ यू लाइक अगर आपको एक डेटा सेंटर क्रिएट करना है, डेटा सेंटर मीन्स एंड अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। दैट्स वाई क्लाउड इतना मार्केट में यूज होता है। कि क्लाउड क्लाउड क्यों, मैं क्लाउड पे सर्वर क्यों क्रिएट करूं? क्योंकि क्लाउड स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी मीन्स कि अगर आपने कोई सर्वर लिया हुआ है कि 4 GB, 4 CPU एंड 16 GB रैम वाला, और अगर आपकी नीड बढ़ गई, कल 1 महीने बाद अगर आपकी नीड बढ़ गई और आपको वो सर्वर एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़े, तो अगर ऑन प्रीमाइसिस वो लाइक बेयर मेटल सर्वर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया सर्वर आप ऑर्डर करो, वो सर्वर आएगा, उसमें इंस्टॉलेशन होगा, उसके लिए रैक में जगह बनानी पड़ेगी, ऐसे मैनेज होगा। तो उसकी जगह पे अगर यही थिंग क्लाउड पे है, अगर आपका सर्वर क्लाउड पे है और आपको लगे कि नहीं अभी ये 4 CPU वाला जो सर्वर है उसको उसको मुझे 16 या 32 करना है, तो यू कैन इजीली डू दैट। इट्स कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। लाइक अगर आपका जो सर्वर है उसकी उसका जो रेंज है या फिर उसकी जो रिसोर्सेस है अगर वो बढ़ाना है, तो आप इजीली बढ़ा सकते हो कि चलो आज 4 का 8 हो गया, या फिर 16 मैंने कर दिया एंड 16 GB रैम का 126 हो गया। सो क्लाउड is providing that thing. That's why cloud is more useful rather than on premises। ऐसा नहीं है, ऑन प्रीमाइसिस सर्वर के भी फायदे है कि आपका डेटा आपके पास है। यहाँ पे क्लाउड पे है आपका डेटा, इट कैन बी थेफ्ट अगर आपके। और क्लाउड का मेन थिंग जो है कि आपको आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट से आप किसी भी सर्विसेज को या फिर किसी भी जगह पे किसी भी डिवाइसेस पे, वेब इनेबल्ड डिवाइसेस पे आप क्लाउड यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा। दैट्स अ मेन थिंग and that's like we can't say main drawback, but it's a drawback of like you have to be on internet for cloud services। So one thing was scalability। वो स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे बताया हमने अभी जो बात की वर्टिकल स्केलिंग। दूसरी चीज है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और वो क्या है कि आपने कंपनी में लाइक उन लोग के 4 सर्वर क्रिएट किया है, 2-2 GB या फिर 4-4 CPU वाले 4 सर्वर है, बराबर। अगर अभी ऐसा लगे कि हमारा जो ट्रैफिक है, हमारा जो यूज है क्लाइंटल, वो बढ़ गया है और रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, तो हम ऐसा सेट कर सकते हैं क्लाउड पे कि ये 4 सर्वर है वो 40 हो जाए एज पर अवर रिक्वायरमेंट, कि वो 4 सर्वर में से 8 सर्वर हो जाए, एक्सक्यूज मी, 4 सर्वर में से 8 सर्वर हो जाए, और फिर जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए तो वो फिर 8 सर्वर वापस 4 सर्वर हो जाए। तो क्लाउड पे क्या है कि हाँ, जितना यूज है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस समय के लिए आप पूरा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट खत्म है तो आप उसे बंद करो। आपकी जो कॉस्ट है वो रुक जाएगी, वो कॉस्ट कट हो जाएगी जो आप यूज कर रहे हो। जितना आप यूज करोगे उतना ही आप पे करोगे। इट्स कॉल्ड पे एज यू गो। लाइक हाउ, जितनी सर्विसेज या फिर जितना कुछ, जितनी देर तक आप यूज करोगे आप उतने के लिए ही पे करोगे। सो ये इट्स अ वन थिंग कि क्लाउड पे आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, जो ऑन प्रीमाइसिस बेयर मेटल जो सर्वर लेने के लिए, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी एंड उसका मैनेजिंग कॉस्ट, तो वो सारी क्लाउड पे ऐसे ही कम हो रही है, कम हो जाएगी। क्योंकि आप इसमें सिर्फ जब नीड है, जब काम है, तब आपने सर्वर क्रिएट किया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हुई आपने बंद किया। तो फॉर दैट टाइम
कि जब तक आप उसे यूज कर रहे हो आप उतना ही टाइम के लिए पे कर रहे हो. It's one advantage of cloud that it can reduce your cost that all the companies needs, कि हमारी कोस्ट कटिंग कहाँ हो और बेहतर परफॉर्मेंस. बेहतर यानी एज आई टोल्ड वर्टिकल स्केलिंग, कि भाई जितनी जरूरत है उतना हाई परफॉर्मेंस सर्वर ले लो, पर जब जरूरत नहीं है, जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म है, आप कम कर सकते हो. So it's a advantage of cloud. Then portability. Why portability means, uh, if right now मान लो कि अगर हम AWS क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो कल या फिर जब ऐसा टाइम आएगा कि हाँ हमें AWS से Azure पे मूव होना है, यही सिनारियो हम अपने ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर के लिए लेते हैं, कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा रैक शिफ्ट करना पड़ेगा, पूरा लाइक स्पेस, फिर पूरा रैक, पूरे पूरे सर्वर्स, नेटवर्क, एवरीथिंग, जो मुझे ऑलवेज वो कॉस्टली रहेगा कि यहाँ से मूव करके यहाँ, और जो टाइम कंज्यूमिंग है वो एक्स्ट्रा. उसकी जगह पे अगर यही थिंग क्लाउड पे है, कि आप एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास से सर्विस ले रहे हो और वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है आपका, और आपको मूव करना है, तो यू कैन इजीली माइग्रेट योर सर्वर्स, योर स्टोरेज, डेटाबेस, एनीथिंग. You can easily migrate to other cloud providers. So it's called portability. So it's a advantage of cloud. कि आप then the most one is high availability. Why high availability? In the sense of, if you have a big company, or if you have a like providing software as a service, that your client are using it 24/7, 365 days, like client को किसी भी तरह की एरर या फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. अगर मेंटेनेंस नहीं है तो तब तक कुछ नहीं होना चाहिए. हमारा जो प्लेटफॉर्म रहेगा या फिर सॉफ्टवेयर जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरी अवेबिलिटी होनी चाहिए, हाई अवेबिलिटी होनी चाहिए. तो वो क्लाउड पे मिल सकते हैं. इट कैन बी अचीव्ड ऑन क्लाउड यूजिंग लोड बैलेंसर है, या फिर आप S3 यूज कर सकते हो फॉर डेटा रिडंडेंसी में. सो ये एक मेन एडवांटेज बोल सकते हैं क्लाउड का, कि आप अपना जो प्लेटफॉर्म है या अपने जो सॉफ्ट सर्विस है वो बिना कोई रुकावट के क्लाइंट को दे सकते हो. इट्स कॉल्ड हाई अवेबिलिटी. देन फ्लेक्सिबिलिटी, वो तो क्लाउड देता ही है, कि अगर आप कहीं पे भी हो, कोई भी डिवाइस पे काम कर रहे हो, यू कैन एक्सेस ऑल द सर्विस, you can you can manage everything from any device. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइड करता है. मैनेजिंग कॉस्ट रिड्यूस करता है. यस, इट्स अ मेन थिंग, कि कंपनीज को कहाँ बचत करनी है, कंपनीज को, क्योंकि ये जो आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी उसके हिसाब से ही आपको पैसे देने हैं. तो उस हिसाब से कंपनी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होगी. और अदर थिंग इज, आपको रियल टाइम बिजनेस डेटा, लाइक बाय यूजिंग S3, रियल टाइम डेटा आपको प्रोवाइड होगा ऑन द क्लाउड. oh yes, one more thing is location independent. जैसे आप अभी, हम यहाँ इंडिया पे है, ओके, एंड हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो क्लाउड है वो US में बना हुआ है. तो इट्स ए लोकेशन इंडिपेंडेंट. वो कहाँ है हमें उससे कुछ नहीं फर्क. हाँ, हमारी कोस्ट पे, या जैसे हम, हमारा क्लाइंट कहाँ है, कहाँ से वो यूज करने वाला है, उसके हिसाब से हम उस वाले रीजन में
हमारे सर्वर, हमारे रैक डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे और उस हिसाब से वो यूज होगा. सो इट्स फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोकेशन कि आप कहाँ पे अपना सर्वर रख रहे हो, आपका इंटरनेट कितना, लाइक द मेन थिंग इज इंटरनेट बैंडविड्थ कि वो कितनी स्पीडली वो यूज करता है. सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड की हाँ इस वजह से क्लाउड का मार्केट है, क्लाउड मार्केट में है कि ये सारी चीजें कंपनीज यूज करती है. सो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम अभी क्या कर रहे हैं, इसी टू इंस्टेंस यानी हमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, पहले अपने सर्वर्स, उसके हिसाब से नेटवर्क, उसके हिसाब से हम क्या क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से स्टोरेज, फिर डेटाबेस जैसी नीड. तो हम सर्वर से स्टार्ट करते हैं कि हम सर्वर्स कैसे क्रिएट करेंगे इन द क्लाउड. तो फॉर दैट AWS की जो सर्विस का नाम है वो EC2 है. EC2 यानी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. सो इलास्टिक क्यों, क्योंकि आप जैसे उसको स्केल कर सकते हो वर्टिकली और हॉरिजेंटली. सो दैट्स वाई उन लोगों ने इसका नाम इलास्टिक रखा हुआ है. सो लेट्स हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कि वो कैसे हम, मैं सिर्फ सम लाइक बेसिक दिखा रहा हूँ कि कैसे एक सर्वर क्रिएट करेंगे हम और उसको यूज कैसे करेंगे क्लाउड पे, कैसे एक सर्वर्स क्रिएट होता है. लेट्स सी. वैसे ये इजी है इनका, इसका डॉक्यूमेंटेशन और एवरीथिंग मैं वही दिखा रहा हूँ, वो कोई और कुछ नहीं. सो नॉट एन इशू. सो विल नेम आवर सर्वर एज क्लाउड टेस्ट 1. So this is AMIs. AMIs means Amazon Machine Images. Amazon ने खुद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसकी इमेजेस क्रिएट की है. तो सिर्फ हमें वो इमेज सिलेक्ट करनी है कि हमें कौन सा सर्वर चाहिए. देयर आर लॉट्स ऑफ AMIs अवेलेबल इन लाइक अवेलेबल हियर. उसमें से हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है कि चलो अभी हम विंडोज सर्वर इनिशिएट कर रहे हैं, विल सिलेक्ट विंडोज, और उसमें से कौन सा वर्जन, सारी ये जो AMI वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो हम क्या करेंगे, अभी एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए मैं 2012 ले रहा हूँ. व्हाट इज की पेयर. की पेयर ये है कि जब आप कोई सर्वर या फिर अपना जो एडमिन यूजर क्रिएट होता है उस समय पे आपको एक लॉगिन के लिए एक सीक्रेट की एंड मिलती है, वो है की पेयर. ये तो नेटवर्क सेटिंग, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सिंपली एक सर्वर इनिशिएट कर रहे हैं कि हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि वो कैसे होता है. तो हमने नाम ऐड कर दिया, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे वो ऐड कर दिया, इंस्टेंस टाइप. ये मेन चीज है. ये क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कौन सा सर्वर सिलेक्ट करते हैं. जैसे अभी मैंने किया हुआ है T2 माइक्रो. व्हाट इज T2 माइक्रो मीन्स के T2 फैमिली, उन लोगों ने जो नाम दिया है T2. ओके, उसमें क्या क्या अवेलेबल है अभी. 1 CPU है, 1 GB मेमोरी है. आप ये यूज कर सकते हो और नीचे उसकी प्राइसिंग दी हुई है कि इसका चार्ज इतना होगा. क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया US में हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ये चार्ज दिखा रहा है. तो देर आर नंबर ऑफ सर्वर्स, लाइक नंबर ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल कि आप क्या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कौन सा सर्वर, कैसे हाई परफॉर्मेंस है या फिर ज़्यादा CPU वाला है या फिर ज़्यादा मेमोरी वाला है, ज़्यादा IOPS वाला है, आपको कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली.
तो अभी हम T2 माइक्रो यूज कर रहे हैं, की पेयर हमने ऐड कर दी। अभी नेटवर्किंग में कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि नेटवर्किंग एक अलग पोर्शन है। ठीक है, तो नेटवर्क में सिर्फ ये है कि जो भी बाहर से ट्रैफिक आएगा वो अलाउड है। जैसे ये आरडीपी वाला जो भी ट्रैफिक आएगा वो अलाउड है कहीं से भी। सो लेट्स लॉन्च द इंस्टेंस। डन, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया और वो स्टार्ट हो रहा है। सो हमने क्या किया कि जैसे सिर्फ पर बोल रहे थे कि एक सर्वर होता है, ये होता है, तो हमने एक सर्वर क्रिएट कर दिया क्लाउड पे। इस पे अगर हमें कोई भी सर्विस, कोई भी सॉफ्टवेयर, हमारा जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट है, वो कॉन्फ़िगर करके मैनेज कर सकते हैं और उसको पब्लिकली अवेलेबल करवा सकते हैं। लेट्स तो ये भी चालू हो रहा है। ये व्हाट आर द ऑप्शंस, हम ये देख लेते कि इसका अवेलेबिलिटी जोन में ये जो क्लाउड क्लाउड जो भी क्लाउड सर्विसेज जो होती है वो पूरा रीजियन बेस्ड होती है कि आप कौन से रीजियन में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, उसको कहाँ से प्रोवाइड करना चाहते हो, कैसे करो, उस हिसाब से ये सर्वर बनते हैं, ये डेटा सेंटर बनता है। जो भी डेटा सेंटर सर्विसेज है वो रीजन वाइज होगी कि आप अगर अभी हमने सर्वर क्रिएट किया नॉर्थ वर्जीनिया में, तो ये नॉर्थ वर्जीनिया अवेलेबल है, पर आपका जो भी रहेगा वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के हिसाब से रहेगा। अगर आप दूसरी रीजन पे मूव होते हो लाइक नॉर्थ कैलिफोर्निया एज एन एग्जांपल, तो वो इंस्टेंस यहाँ पे आपको नहीं दिखागा। क्यों? क्योंकि आपने वो वाले रीजन में हमने सर्वर क्रिएट किया है, हमारा जो डेटा सेंटर है वो यहाँ है। ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है, चेक। फिर है सिक्योरिटी ग्रुप। व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप? सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल की तरह है कि कौन सा ट्रैफिक ट्रैफिक यानी कौन से आईपी से या फिर कौन से स्पेसिफिक पोर्ट पे सर्वर एक्सेस होना चाहिए। लाइक अगर ये अभी है पब्लिक क्लाउड मीन्स कोई भी यूज कर सकता है। हम हमारी वैसी सर्विस है कि हम पब्लिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमें ऐसा है कि हम स्पेसिफिक पोर्ट पे या फिर वो लाइक सिर्फ सर्वर एक्सेस होना चाहिए बट उसका आरडीपी नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप। हमने जैसे अभी है कि ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं। तो कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। जिस तरह से ये चालू है, ये है सिक्योरिटी ग्रुप। इनबाउंड रूल्स, व्हाट इनबाउंड रूल्स यानी कौन सा ट्रैफिक अंदर आएगा, कि कौन कौन से आईपी से ये सर्वर एक्सेस होना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है आईडीपी प्रोटोकॉल, देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स आपको दिख रहे हैं। तो कि ये सर्वर एचटीटीपी प्रोटोकॉल से आना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, क्या एचटीटीपी सर्विसेज इसकी मिलेगी, तो वो सब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है कि आईडीपी प्रोटोकॉल से इस वाले पोर्ट पे कोई भी आईपी से ट्रैफिक आ सकता है, ये ऐसा दिखा है। फिर आउटबाउंड रूल्स, ये जाएगा कैसे? आउटबाउंड रूल मीन्स सर्वर से कौन सी रिक्वेस्ट बाहर जा रही है, सर्वर से कौन सा रिस्पॉन्स बाहर जा रहा है, तो वो यहाँ से डिफाइन होता है कौन सा ट्रैफिक बाहर जा रहा है। तो सिक्योरिटी ग्रुप इसके लिए यूज होता है कि हम आने वाला ट्रैफिक एंड आउटबाउंड ट्रैफिक
जो जाने वाला है, जो भी रिस्पॉन्सेज जाने वाला है, वो मैनेज कर सके, उसे रिस्ट्रिक्ट कर सके। इसीलिए हमें जो की पेयर हमने यूज की थी वो ये हो गया हमारा सर्वर तैयार। इस पे अब इसमें क्या आएगा, नेटवर्किंग पोर्ट, नेटवर्किंग थिंग, कि हम अपने सर्वर पे नॉट ओनली बाहर से या फिर अंदर से भी वो इंटरनली कैसे एक्सेस होगा, इंटरनली सर्विसेज कैसे एक्सेस होगी। तो वो जो नेटवर्किंग है उसे AWS यहाँ पे VPC कहता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये जैसे आपको VPC, जैसे ये अभी अभी जो कनेक्टेड है VPC क्रिएटेड है, वो है इसका डिफॉल्ट। अमेजोन जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या फिर VPC क्रिएट करते हैं, ये एक डिफॉल्ट VPC है। इट्स अ वन टॉपिक। तो इस VPC से क्या मैनेज होता है, नेटवर्किंग। जो हम अपने क्लाउड पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, कि हमारे पास अगर 10 सर्वर है, 10 में से 5 वेब टायर के सर्वर है एंड 5 DB टायर के सर्वर है, कि 5 डेटाबेसेस सर्वर एंड 5 वेब सर्वर्स, तो वो इंटरनली कैसे कनेक्ट होंगे। डेट अगर, क्योंकि डेटाबेस सर्वर को इंटरनेट या फिर पब्लिकली एक्सेस की जरूरत नहीं है, वो बाहर से एक्सेस नहीं होने चाहिए, बराबर। तो डेटाबेस सर्वर को इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलता, एंड वेब सर्वर सिर्फ डेटाबेस सर्वर को पब्लिकली कनेक्ट होने, प्राइवेटली कनेक्ट होने चाहिए। तो उस हिसाब से जो नेटवर्किंग होता है वो हम VPC से कर सकते हैं। विल क्रिएट वन VPC, जैसे ओके, ये हमारा सर्वर हो गया। तो ये हो गया EC2 इंस्टेंस। हमने एक कंप्यूट क्रिएट कर दिया हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें नेटवर्किंग आ गया, इसमें स्टोरेज आ गया। अगर अभी हमें कुछ ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने बताया, स्केलेबिलिटी, की स्केलेबिलिटी क्यू जो मेन थिंग है, जैसे ये है अलग से वॉल्यूम, कि हमें अगर रिक्वायरमेंट है कि 200 GB वाली हार्ड डिस्क, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 200 GB है तो वो अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, और कभी भी वो डिटेच भी कर सकते हैं। तो इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी जो है कि हाँ, क्लाउड पे सर्वर क्रिएशन, वॉल्यूम अटैच, डिटेच, इवन दो जस्ट अगर मान लो हमें ऐसे ही दूसरे 10 या फिर 20 चाहिए उतने सर्वर्स क्रिएट करने हैं, तो क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम प्रोसेस रहेगी, और नहीं, यहाँ से इसकी इमेज क्रिएट होगी, उसी इमेज पे, उसी इमेज को लेके हम दूसरे जितने चाहे उतने सर्वर्स क्रिएट कर सकते हैं। कि हमने एक सर्वर परफेक्टली तैयार कर लिया है,
उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स है हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के, वो हमने ऐड कर दिया। अभी उसी सर्वर को हम पूरा स्केल करेंगे कि वैसे ही सर्वर हमें और 20 चाहिए। तो डायरेक्टली उसकी इमेज क्रिएट होगी, जो AMI हमने देखा वो AMI इमेज क्रिएट होगी, और उसी पे दूसरे इंस्टेंस क्रिएट होगी। तो दैट्स वाई क्लाउड यूजफुल है, कि आपका अगर इसको बढ़ाना है या फिर इसको रिमूव करना है तब इजीली मैनेजेबल है। हम बात कर रहे थे कि स्केलेबिलिटी तो क्या है, एक थिंग बता। ओके, आई हैव क्रिएटेड वन कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि ये वो ये एक सर्विस ऐसी है जो स्केलेबिलिटी में है कि आपको किस रिक्वायरमेंट पे कैसे स्केल करना है। लाइक आपकी अगर ऐसा हो कि हमारा CPU कंजप्शन जो है वो 50 या फिर 70% से बढ़ जाए तो एक सर्वर बढ़ जाना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ट्रैफिक अगर इससे ज़्यादा आ जाए या फिर मेमोरी कंजप्शन हो जाए तो फिर वो इंस्टेंसेस बढ़ जाने चाहिए, या फिर वो इंस्टेंस में CPU या मेमोरी इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो उस हिसाब से स्केल होता है। तो ये जो है, जो हम ये भी कर रहे हैं वो एक टेम्पलेट क्रिएशन है कि हमें कैसा सर्वर, अगर स्केल हम कर रहे हैं तो कैसा सर्वर वो क्रिएट करेगा। जैसे हमने एक सर्वर जो बनाया है उस हिसाब से ही करना चाहिए, या फिर कुछ नया, तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने एक हम देखते हैं बना के कि चलो इसमें हमें जो दूसरे सर्वर्स होने चाहिए, कौन से टाइप के इंस्टेंस होने चाहिए। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं T2 माइक्रो। आप इसके अलावा कोई और टाइप के सर्वर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे M2 यानी मेमोरी की मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आपको अभी के जो सर्वर के हिसाब से, उससे ज़्यादा है मेमोरी रिक्वायरमेंट, तो मेमोरी वाले सर्वर यूज कर सकते हैं। कि ये ऑटोमेटिकली स्केल होगा जब भी जो क्राइटेरिया हम सेट करते हैं उस हिसाब से ये सर्वर स्पिन अप करेगा। जो सर्वर क्रिएशन है वो करेगा, उसे स्पिन अप बोलते हैं। T2 माइक्रो ये हमने चूज किया। एंड कौन सा वाला सिक्योरिटी ग्रुप, ऑल अदर ऑप्शंस हम अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा यूज करेगा कि सिक्योरिटी ग्रुप यानी फायरवॉल की वो सिर्फ पब्लिकली एक्सेस होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ अदर कुछ पोर्ट पे हमें इंटरनली ही इंटरनली ही कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ रखना है। तो वो हम यहाँ से ही रख देंगे कि एग्जिस्टिंग वाला ही यूज करें। तो ये बन गया एक टेम्पलेट। अभी इसको हम स्केलिंग ग्रुप में ऐड करेंगे। क्या कि
हमने ये जो टेम्पलेट है उसको अटैच कर दिया इस ग्रुप के साथ। ग्रुप क्या करेगा, लोड बैलेंसर क्यों है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए कि अगर मेरे 20 सर्वर अगर मैं स्पिन अप हो रहे हैं तो वो कैसे काम करेंगे, उसके बीच में लोड बैलेंसर रहेगा, आपकी एप्लीकेशन कैसे काम करेगी, वो सारा कुछ मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कैपेसिटी डिफाइन करेंगे कि अगर ऐसा कुछ आता है तो वो कितने सर्वर स्पिन अप होने चाहिए, लाइक धीरे धीरे कि अगर इतना 70% सीपीयू कंजप्शन हुआ तो उस हिसाब से सिर्फ 2 या 3 सर्वर, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो मल्टीपल सर्वर्स, तो वो सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम अभी इसे यही छोड़ देते हैं कि हाँ ये ऐसे काम करता है। इससे क्या होगा कि जो रिक्वायरमेंट हमारी है वो उस हिसाब से सर्वर्स क्रिएट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब रिक्वायरमेंट खत्म होगी ये अपने आप वो सर्वर स्टॉप करेगा और उस हिसाब से अब हमारी कॉस्ट रहेगी। सो दैट्स वाई क्लाउड यूजफुल है। तो जैसे हमने एक ये सर्वर क्रिएट किया, ये हो गया EC2। फिर Amazon S3 क्या है, तो वो हम देख लेते हैं कि S3 क्यों। S3 यानी सिंपल स्टोरेज सर्विस, AWS वाले इसे कहते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस S3। तो S3 एक ग्लोबल सर्विस है कि ग्लोबली एक आप अपना फोल्डर क्रिएट करो, आप अपने, इसे बकेट कहते हैं, एक बकेट क्रिएट करो यूनिक नेम वाला। वो बकेट पब्लिकली एक्सेस होगा अगर आप चाहते हो तो जो भी मेरा डेटा है, मेरे कंपनी का डेटा या फिर इंडिविजुअल डेटा, वो मैं वो मेरा यहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए। जैसे गूगल ड्राइव है वैसे Amazon S3 है, जो गूगल ड्राइव पब्लिकली अवेलेबल है वैसे ये है। पर इन इंडस्ट्रियल सिनेरियो, लाइक इंडस्ट्री का सिनेरियो कि S3 क्यों यूज होता है, क्योंकि S3 पे जो आप डेटा है एज वन सिंगल फाइल की बात करते हैं कि एक सिंगल फाइल है उसकी 3 कॉपी बनती है। लाइक डेटा रिडंडेंसी होती है कि अगर आपका जो लोकल सिस्टम में डेटा है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर वो अनअवेलेबल हो जाए तो आप कहीं से भी S3 में से कभी भी आप वो डेटा वापस से फैच कर सकते हो, वापस से वो रिकॉल कर सकते हो। तो S3, दैट्स वाई S3 इतना वाइडली यूजिंग है कि S3 में 3 टाइप ऑफ S3 बकेट्स होते हैं। कि एक S3 सिंपल S3 जो क्या होता है कि जिसमें हमें कंटिन्यूअस लाइक अपलोड डाउनलोड, वो जो डेटा मैनेज है वो वैसे होगा कि कंटिन्यूअस कंपनी का डेटा या फिर क्लाइंट का डेटा वहाँ पे अपलोड होगा, फिर वही क्लाइंट वो डेटा डाउनलोड करेगा या फिर वो यूज करेगा, तो वो उसके लिए सिंपल S3 सर्विस है। उस दूसरी सर्विस S3 ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी ऐसा डेटा कि जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है या फिर उसकी उतनी जरूरत नहीं, अगर एक बार अपलोड हो गया यू हैव टू कीप इट सेफ, तो उसके लिए S3 ग्लेशियर सर्विस यूज होती है। और तीसरी है S3 डीप ग्लेशियर। इस उसमें क्या है कि ऐसा डेटा कि जो रिक्वायरमेंट नहीं है और जो बहुत पुराना हो गया है, तो Amazon AWS अपने हिसाब से कि 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना डेटा है, तो उसको डायरेक्टली वो मूव कर लेगा S3 ग्लेशियर में।
डीप ग्लेशियर में, कि जैसे वो सिर्फ जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, सिर्फ उसकी स्टोरेज की, वो उसकी जो फ्रीक्वेंट यूजेबिलिटी नहीं है तो उसकी कॉस्ट वहां पे डिडक्ट हो जाएगी। तो उस हिसाब से S3 काम करता है कि हमारा डेटा कैसे हम मैनेज कर रहे हैं और कैसे वो रीयूज हो रहा है। तो S3 इज अ डेटा स्टोरेज सर्विस ऑफ AWS। हम एक डेटा बकेट क्रिएट करते हैं। जो पब्लिकली एक्सेस होगा, so there's some issue right now. सो ये हो गई हमारी बकेट क्रिएट। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम अपलोड करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अब अभी हमने फाइल अपलोड की S3 बकेट में जो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसको परमिशन नहीं है। तो हम यहाँ से उसको परमिशन देंगे। ओके,
सॉरी, ये भी नहीं चल रहा है तो बट फॉर द डेटा स्टोरेज थिंग Amazon S3 यूज होता है कि कैसे अपने डेटा को एक्सेस या फिर मैनेज अवेलेबल कैसे करवाना है, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं. द अदर थिंग्स आर वीपीसी है, जो नेटवर्किंग हम यूज करेंगे, जो पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड कैसे बनाना है, वो वीपीसी से यूज होता है. वीपीसी सर्विस उसके लिए यूज होती है. फिर वॉफ, व्हाट इज वॉफ? तो एक टाइप का फायरवॉल सर्विस है जो एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है. हमारी फायरवॉल, ऑन प्रीमाइसिस फायरवॉल की जगह पे अमेजोन की जो सर्विस है वो है. अगर वो यूज करे कि हमारा क्लाउड जो भी ट्रैफिक आएगा वो इस वाले फायरवॉल को यूज करेगा, तो वहां पे हम सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी पैचेस एंड सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी ट्रैफिक या जो भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स रहे आएगा, वो उस रूल उस पे अप्लाई होगा. अगर उसमें कुछ वल्नरेबल या फिर सिक्योरिटी ब्रीचेस कुछ है तो वो हमें पता चल जाएगा, या फिर वॉफ उस रूल के हिसाब से उसे ब्लॉक करेगा और उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी. तो ये वॉफ एज अ फायरवॉल अमेजोन की तरफ से, लाइक अमेजोन प्रोवाइड करता है. देन लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर इज अ टूल या फिर एज अ सर्विस, अगर हम बोले तो हाई अवेबिलिटी के लिए, कि आपकी एप्लीकेशन क्लाइंट को, अगर हम कुछ भी, अगर सर्वर पे कुछ हुआ, एक वन इंस्टेंस अगर डाउन हो गया और आपके पास दूसरा इंस्टेंस अवेलेबल है ऑलरेडी, तो सारी रिक्वेस्टिस वो जो बंद इंस्टेंस पे है वो नहीं जानी चाहिए, और जो चालू वाला इंस्टेंस है जो चल रहा है वो इंस्टेंस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा. तो वो जो रिक्वायरमेंट है, वो जो ज़रूरत है, वो अचीव कर सकते हैं लोड बैलेंसर से. एंड वन मोर थिंग इज क्लाउड फ्रंट. क्लाउड फ्रंट क्या है? अ सीडीएन प्रोवाइडर. सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब जैसे जो स्टैटिक कंटेंट है हमारा, अगर वेबसाइट को लोड होने के लिए जो बैकएंड में जो भी फाइल्स रिक्वायरमेंट होगी वो इजीली कैशिंग होके, लाइक जब स्पीड कैसे दे सकते हैं, क्लाइंट अगर हमारी वेबसाइट यूज कर रहा है बराबर, और वन टाइम जब वो हिट करता है और उसे फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए कि यार ये लोड होने में टाइम लगता है, तो सीडीएन क्या करता है कि उसके लाइक नजदीक में जो भी पीओपी सर्वर होगा, पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्वर, कि वो उसको जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा कि वन डॉट टेक्स्ट फाइल उसने डाउनलोड की या फिर वन डॉट टेक्स्ट फाइल उसकी लोड हुई, तो वो वन डॉट टेक्स्ट फाइल कैश हो जाएगी वो पीओपी सर्वर में. तो जब नेक्स्ट टाइम जब वो रिक्वेस्ट करेगा या फिर जब वो हिट करेगा, तो वो उसे सर्वर पे ढूंढने नहीं जाएगा. तो जो सर्वर पे ढूंढने जा रहा था, जितना टाइम सर्वर पे ढूंढने को लग रहा था, उसकी जगह पे वो उसके पास वाला पीओपी सर्वर जो उसने कैश किया हुआ है वो ही उसे रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा. तो उससे होगा क्या कि जो वो सर्वर पे जाने तक का जो टाइम था, जो लेटेंसी थी, वो कम हो जाएगी. तो सीडीएन का ये यूज है. एंड क्लाउड फ्रंट एक एडब्ल्यूएस की सर्विस है जो सीडीएन प्रोवाइड करती है. उससे अलावा एचकास्ट है जो सीडीएन प्रोवाइडर है. एंड एज्योर में क्लाउड फ्लेयर है.
Okay. So cloud is a vast thing. तो जितना ये जो हमने जितना देखा या फिर जितना मैंने बताया वो इनफ नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा है। बट आज के लाइक मैंने जितना कवर कर सकता था उतना मैंने किया, जो बेसिक्स है। इसके अलावा बहुत कुछ है क्लाउड में। शालिन, शालिन सर, हेलो। हेलो। Hello. शालिन सर, Yes. कैन वी Yes, sir. stop We now? can conclude now. Thank you so much for your valuable time and the knowledge, whatever you have shared to the students. I hope it was the nice experience for you. Yes, yes, it is. Yeah, it was very nice experience for the Patil University to deal with you. Hope we will see you in the future again. Sure, sure. Sir. Thank you. Yes. Thank you.